everyone. Today we'll be doing the first chapter of economics, naming graphs in economics. You guys studied microeconomics in grade 11, and in grade 12 you will be studying macroeconomics. Microeconomics, as you all know, dealt with individual level, and macroeconomics obviously deals at a national level. The basic difference between microeconomics and macroeconomics is the level that it deals with. Microeconomics used to deal with the problems and the solutions at individual level, like the law of supply, scarcity, resources, the law of demand, etc. Now we will be studying the problems at an economy level, at a country level, that is called microeconomics, like population, like poverty, like unemployment, etc. Okay, but the macroeconomics, it is bit confusing and bit complicated for a common man. So in order to make a layman understand the concepts of economics, some diagrams and some graphs are used. Diagrams and graphs are what? They are the representation of the complicated data so that a layman can also understand. Okay, so with this brief introduction, let's begin our chapter. We have from the chapter. Economics. What does economics do? Economics explain and analyzes various economic events occurring in the real world. An analysis of the statistics provided by the state, banks and international organization is very purposefully done in economics. So ये जो भी organizations होती हैं, जो भी बड़े-बड़े units होते हैं, like banks हो, like international organizations हो, state यानी government हो, जब भी ये लोग कोई भी अपनी स्टैटिस्टिक हमको प्रोवाइड करते हैं तो दैट स्टैटिस्टिक्स इज ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड. इट इज बियॉन्ड द अंडरस्टैंडिंग लिमिट ऑफ अ कॉमन मैन. तो उसको इजी करने के लिए, टू मेक दैट इजी टू अंडरस्टैंड, व्हाट डज इकोनॉमिस्ट डू? दे ट्राई टू प्रेजेंट द डेटा diagrams. So when we are naming graphs and diagrams simultaneously, we should be knowing the difference between them. Okay, so yeah. Diagram is a representation of observable data by way of a picture. अब diagram भी observable data का representation होता है और graph भी होता है. So what is the difference between graph and diagram? We'll be studying both of them simultaneously so that you can understand the difference between. Like the second point, scales and measurements are used while drawing in diagram. जब भी कोई डायग्राम बनाता है तो स्केल्स एंड मेजरमेंट यूज करता है बिकॉज उसमें थोड़ा बहुत रेलेवेंसी चाहिए, बट उसके लिए स्टैटिस्टिकल नॉलेज की, स्टैटिस्टिकल टूल की जरूरत नहीं होती है. हाउएवर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो यू शुड हैव बेसिक स्टैटिस्टिकल नॉलेज बिफोर यू स्टार्ट ड्राइंग अ ग्राफ. ओके, then the third point, diagram is drawn for data which are presented in discrete frequency distribution. अगर डायग्राम जो है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट इज व्हाट? डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी. ओके, डिसकंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यू ऑल आर अवेयर ऑफ. जब डेटा जो है सिर्फ एक्सआई फॉर्म में होती है दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट, और जब डेटा जो है वो क्लासेस में होती है दैट इज कंटिन्यूअस वेरिएट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, जब भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा को रिप्रेजेंट करना होगा तो वील प्रेफर डायग्राम. हाउएवर जब हमको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को represent करना है तो we'll prefer a graph. Then a diagram is used by advertising companies to draw attention by the government to provide information and by the social organization to spread awareness. ये उसकी usefulness की point है. जैसे diagram है, the one shown here, तो ये diagram क्या है? एक trend दिखा रहा है, ठीक है? This is like a downward, it is an upward. तो ये जो trend दिखा रहा है वो कैसा, ये से ही देखने से कॉमन मैन को समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है. इट इज मूविंग अपवर्ड, सो इट इज एन अपवर्ड ट्रेंड.
So they need not have statistical knowledge to understand a diagram, right? तो इसकी यूजफुलनेस क्या होती है, जब भी एडवर्टाइजिंग कंपनीज को या गवर्नमेंट को कोई दिखाना होता है ट्रेंड अपवर्ड हो, डाउनवर्ड हो या कांस्टेंट हो, जो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा हो, सेम लेवल पे चल रहा हो, या जो बहुत ज्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा हो, वो दिखाने के लिए वो डायग्राम्स दिखा देते हैं, राइट, टू मेक यू अंडरस्टैंड. Next is graph. As I discussed simultaneously, we'll read these points also quickly so that the difference between graph and a diagram is easily understood. A graph is also a representation of observable data by way of a picture, but a graph is drawn for statistical information which is not self-explanatory. वहाँ जो भी information होती थी diagram में, that was self-explanatory. वो समझ जाते थे हम कि अगर price इतना है, डिमांड बढ़ रहा है, अगर जैसे प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रही है तो डिमांड बढ़ रहा है. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिलेशन था. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. तो यू शुड प्रेफर अ ग्राफ वेयर द डेटा इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. drawn for data with continuous frequency distribution. जब डायग्राम कब करते हैं, जब डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ग्राफ कब करते हैं, जब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो. Third point, a graph can extend over one or more of the four quadrants. अच्छा, okay, remember the graph paper. अगर हम ग्राफ पेपर के ऊपर x एक्सिस और y एक्सिस बिल्कुल मिडल में ड्रॉ कर देते हैं, ओरिजिन बना देते हैं, तो we get four quadrants, right? फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में x एक्सिस भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं. तो ग्राफ जो होता है वो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक है. जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता था वहां पे चारों दोनों चीजें, x भी माइनस में, y भी माइनस में. So a graph can extend over any of the four quadrants that are obtained by the intersection of x and y axis on a plane. Okay, then last is graphs are used more by researchers and educationists. Graph के लिए, as I told you, it needs statistical information. They are used with the statistical knowledge. तो ये ज़्यादातर कौन use करता है? Researchers and educationists. एक और difference you can add, this diagram you can also draw. जैसे diagram हम लोग you can make it on a paper also, but graph is always preferred to be made on a graph paper and with proper scales. Moving ahead, we have an example of a graph. Okay, so this is x-axis, this is y-axis, and this. Why do we need diagrams and graphs in economics? So basically we'll study the importance of diagrams and graphs in economics. Why do we need them? The first cheese, the words, the of the subject of economics, which is perceived as difficult and complicated, is made easier by way of diagrams and less confusing by way of graph. So you should remember the keywords, like the first one में easy to understand. The first, it's easier to understand. जब जो भी इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनको हम इजियर वे से, इंटरेस्टिंग वे से समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड ग्राफ्स. सेकेंडली, ट्रेंड्स नोन, भी इजीली नोन. जब क्या होता है, अगर हमारे पास डायग्राम्स या ग्राफ होते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है, ये मूविंग ट्रेंड है, ये कांस्टेंट है. तो दोस ट्रेंड्स कैन बी easily understood. Trends of certain economic parameters over various years can be observed through a single diagram or graph. Third, उसमें कीवर्ड है चेंजेस. क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई डायग्राम या ग्राफ होगा, उसमें लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर क्या हो रहा है उसको आपको देखते ही क्लिक हो जाएगा. तो यू विल बी इजी, you will be it will be easy for you to click the changes, to notice the changes that are occurring in the various sectors of the economy. Next is ज़्यादा information हो, like more than one year या more than one group, one class, तब उन comparison करना बहुत easy हो जाता है. तो here the keyword is comparison. The comparison can be easily drawn for the distribution of some economic parameters between groups, classes, regions, sectors, as well as time periods. If you have data for more than 1 year, if you have more than 1 decade, या अगर अलग अलग क्लासेस, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग सेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, तो यू कैन इजीली मेक अ कंपैरिजन बिटवीन देम. एंड लास्ट इज
इकोनॉमिक्स के डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को और कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट को ल्यूसिड तरीके से, इजी टू अंडरस्टैंड तरीके से समझाया जाता है और यहाँ पे इजीली समझ भी जाते हैं। तो क्या होता है, टाइम एंड एफर्ट जो होता है वो प्रेजेंटर के सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो द टाइम एंड एफर्ट्स आर सेव. There are many more importances also of diagrams and graphs, but in this textbook we have been given these 5, so we'll be discussing these. Okay, what else can be the importance? You can guess and you can tell. जैसे किसी के लिए भी प्रेफरेबल होगा कि टू रीड अ लॉन्ग पैराग्राफ ऑफ द कंसेप्ट, उसके बदले अगर उसको एक डायग्राम या एक ग्राफ दिखा दिया जाए तो दैट इज मोर अट्रैक्टिव वे, राइट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. Moving ahead, we have aspects to be considered while drawing a diagram or a graph. अब aspects यानी हम लोग ऐसे ही haphazardly drawing a graph या diagram के बीच में चॉइस नहीं कर लेते. एक्चुअली क्या होता है, जब भी दोनों चीजें आपको बनानी है, डायग्राम बनाना हो या ग्राफ बनाना हो, these are the following things which you should keep in your mind before beginning that. First one is choice of type of diagram or graph and their presentation. You have variety of diagrams, you have variety of graphs. So it is up to you. आपको सही चीज के लिए सही तरीके से प्रेजेंट करने के लिए you need to make a proper choice. जैसे for example, जो डिसकंटिन्यूअस डेटा की बात करते हैं तो उसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम में से सेम टाइप की डेटा उसमें रिप्रेजेंट हो सकती है. लेकिन इट्स अप टू यू, आप खुद देखेंगे कि आपका मैटर को, आपके जो सब्जेक्ट है, व्हाट यू नीड टू रिप्रेजेंट इफ यू आर रिप्रेजेंटर, तो क्या सूट होता है, कौन सा स्टाइल सूट होता है, दैट यू हैव टू चूज इट प्रॉपरली एंड दैट इज योर फर्स्ट प्रेफरेंस. ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमको वी नीड टू चॉइस द पर्टिकुलर टाइप ऑफ डायग्राम और ग्राफ as per the presentation. Second is clarity. Now what do we cover in clarity? Clarity मतलब क्या होना चाहिए इसमें, your diagram should be neat and clean. ठीक है, अगर आपको कहीं कई चीजें दिखानी है जिसमें आपको अलग चीज दिखानी है तो you should use different shades maybe. So it should be clear, neat, so that it is easily understandable. Third is scales and measures. अगर हमको कोई चीज को प्रॉपर दिखाना है, इफ यू वांट दैट योर डायग्राम और ग्राफ शुड लुक अप्रोप्रिएट इन साइज, तो आपको क्या दिखना चाहिए कि जो आपका डेटा है दैट इज इन, मतलब दैट इज एज पर द स्केल्स गिवन, एज पर द साइज गिवन. तो स्केल्स एंड मेजरमेंट आपने देखा होगा, ग्राफ के ऊपर कंपलसरी लिखा होता है स्केल. एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी यूनिट्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप किसी बहुत सारे ईयर्स को, बहुत सारे नंबर्स को, बहुत सारे मे बी अमाउंट होता है तो 1000 lakhs ऑफ रुपीज को एक सेंटीमीटर के अंदर कवर कर रहे हैं, तो आपने कितना क्लास, कितना जो गैपिंग है वो लिया है उसको समझाने के लिए. दैट स्केल एंड मेजरमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस. दोनों एक्सेस, जो एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, दोनों एक्सेस के ऊपर प्रॉपरली नाम होना चाहिए और पता होना चाहिए कि व्हाट डज ईच ऑफ देम रिप्रेजेंट. एक्स एक्सिस पे आपने क्या शो किया है, वाई एक्सिस पे आपने क्या शो किया है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देयर इज अ रूल दैट वी ऑलवेज रिप्रेजेंट the independent data on x axis and the dependable one on y axis. So that should be kept in mind. This data and source of data, it's always preferable. अगर कोई भी डायग्राम या ग्राफ दिया हो तो उसके पास जो डेटा टेबल है, जहाँ मुझे सोर्स ऑफ डेटा को देख के आपने बनाया है ग्राफ और डायग्राम, दैट शुड बी एनक्लोज्ड विद, मतलब वो उसके पास होना चाहिए टू मेक द कंपैरिजन क्लियर. सॉरी. मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डेटा. जब डेटा कैलकुलेट करने का मेथड जो होता है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है, लाइक उसके लिए कोई फॉर्मूला चाहिए. आपने जो एक आपके पास डेटा है, दूसरा जो डिपेंडेबल वाला डेटा है दैट यू हैव फाउंड आउट, और कुछ फॉर्मूला, कुछ मेथड यूज करके अगर आपने उसको फाइंड आउट किया है, तो व्हाट शुड यू डू, you should mention the method of calculating the data. Okay, so these were the aspects that you should consider while drawing, while selecting what to draw, a diagram or a graph. Moving ahead, we have types of diagrams. What type of diagrams do we have in economics?
pictogram, the very first pictogram, scatter diagram, line diagram, circle diagram, bar diagram, pie diagram. Okay, so we have these diagrams. उसमें से पिक्टोग्राम, यू रिमेम्बर, आप छोटे थे तब से बनाते आ रहे हैं. जैसे अगर लिखा होता था बल्ब, बल्ब्स का नंबर होता था, तो 5 बल्ब्स हैं, वी यूज्ड टू ड्रॉ 5 बल्ब्स. और कभी 4.5 होते थे तो आधा बल्ब ड्रॉ करते थे, राइट. पिक्टोग्राम, जो चीजें होती हैं हम उसका सिंबल लेके बना के ड्रॉ करते थे, दैट वाज पिक्टोग्राम. देन स्कैटर डायग्राम आल्सो यू हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस. जब different points are being scattered here and there in the diagram, that is known as scatter diagram. In this chapter, basically, we will be studying 3 diagrams, that is the line diagram, the bar diagram, and the pie diagram. You have studied these also, but we will see each of them individually. Yes, this is time-based line diagram. What does a time-based line diagram mean? इस तरह का जो डायग्राम होता है, जब हम किसी भी टाइम को, किसी भी डेटा को उसके टाइम के हिसाब से अरेंज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइम बेस्ड लाइन ग्राफ. जैसे संडे के दिन 25, देन मंडे के दिन 15, तो ये क्या है, और ये वेरिएशन जो है वो पॉइंट्स करके दिखाया गया है, और वहां से फिर इसको ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइंस यूज की हुई है, दैट इज नोन एज टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम. ओके, पिक्चर्स विच शो द शेप और स्लोप of a relationship in economics between two variables are often drawn. Okay, जैसे सबका बेस्ट एग्जांपल है टाइम बेस्ड लाइन डायग्राम का, द डिमांड कर्व, द सप्लाई कर्व, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. इसमें भी अगेन यू हैव टू रिमेंबर वन की पॉइंट, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन एक्स एक्सिस एंड द डिपेंडेबल वेरिएबल इज ऑलवेज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस, राइट. यस, बार डायग्राम एंड टाइप्स ऑफ बार डायग्राम. Bar diagram, you all know, like we draw rectangular bars to point the types कौन से होते हैं, तो इसके उसको we'll go through this. A bar diagram shows distribution of the value of a variable in various components. For example, literacy rate in a country in various years, or literacy rate among females and males. जो भी इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं, जिसको हमको थियोरेटिकली एक लॉन्ग पैराग्राफ्स में और डेटा वाइज पढ़ना जब बोरिंग सा लगता है, तो दैट इज इजीली रिप्रेजेंटेड एंड इंटरेस्टिंगली शोन विद द हेल्प ऑफ द बार डायग्राम्स. बार डायग्राम्स जनरली simple, clustered and divided bar diagram. I know you have studied them all in statistics, but we'll quickly go through them. सिंपल बार डायग्राम में क्या होता है, सिंपल, जब डेटा जितना इंफॉर्मेशन दिया होता है, जितना वो नंबर रिप्रेजेंट करता है, उस नंबर तक का हम एक रेक्टेंगुलर बार बना देते हैं. फिर नेक्स्ट वाला बार, देन नेक्स्ट वाला बार. तो उससे क्या हो जाता है, इट ऑब्वियसली शोज, ये जो छोटा वाला बार है, इट रिप्रेजेंट्स द लोअर वैल्यू, और जो हायर है बार, इट रिप्रेजेंट्स अ ग्रेटर वैल्यू. तो देखने से जब हम लोग बार की साइज देखते हैं, हम समझ जाते हैं. लाइक जैसे हमने इसको, ये जो डायग्राम हुआ है हमारे डायग्राम का एग्जांपल है, तो देखने से हमको स्टडी करने की जरूरत नहीं, हमको इतना तो देखने से पता चल जाता है कि in the year 1989 में it was minimum, however in the year 1993 it was maximum. Okay, so this here the understanding of the concept becomes much easier. This is simple bar diagram when only one bar per information is shown. What about the bar, clustered bar diagrams? Clustered bar diagram कब draw किए जाते हैं, जब हमारे पास common base के ऊपर more than one common variable होता है. Simple bar diagram कब बनाते हैं हम, when we have one common variable over one common base. जैसे ये था, ठीक, ये I'm sorry, this is divided. Yes, this is bar diagram. Cluster bar diagram क्या होता है, when we have values of a common variable and over common base are given for more than one section of related parameters. तो यहाँ पे क्या होता है, सेम वेरिएबल के ऊपर, सेम बेस वैल्यूज के ऊपर हमारे पास वी हैव नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मतलब नंबर ऑफ बार्स. जैसे अगर सपोजिंग किसी एक ईयर के लिए, से फॉर एग्जांपल टेक्स्ट बुक का एग्जांपल देती हूँ, टेक्स्ट बुक के एग्जांपल में सिंपल बार डायग्राम भी है और क्लस्टर बार डायग्राम भी है. सिंपल बार डायग्राम में बाय मंथली सेल है, बाय मंथली यानी 2 मंथ्स की सेल है, ठीक है, जैन फेब की, फिर मार्च अप्रैल की. तो अगर हम लोगों ने सिर्फ सेल लिखा है इन यूनिट्स, तो वहां पे सिर्फ एक ही डेटा है, तो वी विल मेक दैट सिंपल बार डायग्राम. लेकिन अगर
हम लोगों ने जो सेल्स इन यूनिट है उसका बाइफिकेशन किया हुआ है, स्मॉल साइज में कितना, मीडियम साइज में कितना, लार्ज साइज में कितना. तो वी विल बी मेकिंग फॉर एवरी बाय मंथ वी विल बी मेकिंग 3 बार्स जो हमको बताएंगे कि स्मॉल स्केल का इतना, मीडियम स्केल का इतना एंड लार्ज स्केल का इतना. दैट इज कॉल्ड cluster, sorry, yes, this is called cluster bar diagram. And we left what? Divided bar diagram. Yes, divided by bar diagram goes like this. जब एक ही बार के अंदर हमको ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो दैट कैन बी सेग्रीगेटेड एंड साइमल्टेनियसली उसका टोटल भी दिखा सकते हो. ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे सब्जेक्ट्स है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. जैसे 2001 को ये पता चल रहा है कि 45 जो है दैट इज फिजिक्स, फिर 45 के बाद 35 जो है केमिस्ट्री, देन 25, देन 24. तो टोटल भी पता चल जाता है हमको. ठीक है, तो हियर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द सब्जेक्ट सिलेक्टेड आर शोन इन अ डिवाइडेड बार डायग्राम. द सेम बार लेकिन उसके अंदर सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, द फ्रेगमेंटेड वंस. यस, वी हैव डन क्लस्टर्ड बार डायग्राम. Now these are the aspects to be considered while drawing a bar diagram. Now earlier also we studied some aspects. What were they regarding? They were regarding the aspect before drawing a graph or a diagram. Those were the basic aspects which one need to take into consideration before drawing any diagram or any graph. Now this is particularly for a bar diagram. अगर आप बार डायग्राम सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको कौन सी चीजें कंसीडर करनी है. व्हाट एस्पेक्ट्स यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन आर दीज. फर्स्ट वन, जो भी बार्स हम बनाते हैं उनकी इक्वल विड्थ होनी चाहिए. ऐसा नहीं एक पतला बार एक मोटा बार, क्योंकि यहाँ पे हमको हाइट जो है वो डिफरेंशिएट बताएगी, उसका विड्थ नहीं. तो दैट विड्थ जो है उसको यू हैव टू कीप इट इक्वल. उसका विड्थ जो है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी, द बार शुड बी ऑफ द सेम साइज. Second, the length of the respective bars should be proportional to the value of the variable. Exactly. जैसे मैंने यही बताया कि इसकी लेंथ बताती है बार्स की कि कितना है. तो अगर जो छोटी वाली होगी तो हमको समझ में आ जाएगा द बार इज स्मॉलर वन, सो इट रिप्रेजेंट्स अ लेसर वैल्यू. द बार विद द हाइट, जो ज्यादा हाइटेड है बार, दैट विल ऑब्वियसली रिप्रेजेंट द हायर वैल्यू. Okay, the distance between all the bars, this is the third point. The distance between all the bars should be equal. Yes, they should be equidistant. All bars rest on the same line. जो bars होते हैं वो हवा में लटके हुए नहीं होने चाहिए. कहाँ होने चाहिए? They should be on the same line. और वो line कहाँ होती है? It coincides with the x-axis. x-axis के ऊपर से ही जो bars होते हैं वो draw होने start होने चाहिए. और उसकी vertical जो bars होते हैं उसकी alignment कैसी होनी चाहिए? This is the fifth point. All the vertical bars should be arranged from left to right. यानी क्या होना चाहिए? जो पहला bar होगा it should be near the point of origin. Point of origin you remember, no? O के पास क्या होता है? हमारा पहला बार होना चाहिए. तो इसका जो क्लासिफिकेशन उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट बार है it should be near the origin. That means the vertical bars should be arranged from left to right and not the vice versa. Moving ahead, we have pie diagram. जैसे ही नाम आता है pie diagram, हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? एन एप्पल पाई और चोको पाई, व्हाटएवर. दैट मींस अ सर्कल. ठीक है, अ पाई इज गिवन इन अ सर्कल. से फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सर्कल को पूरा यूनिवर्सल सेट माने तो उसमें जो फ्रेगमेंट्स, जो सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं, दैट डिनोट्स योर प्रोपोर्शन, कि कितना प्रोपोर्शन किस चीज का है. तो टोटल अगर यूनिवर्सल सेट होता है तो सर्कल का टोटल कितना होता है? डिग्री 360 डिग्रीज. ठीक है, द डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन डिग्रीज रिप्रेजेंट्स अ पाई डायग्राम. 360 डिग्रीज में से हमको अपने अपने जो भी हमारा टास्क है उसका हमको प्रोपोर्शन निकालना होता है. whatever be the measurement. Diagram which is drawn by representing subdivisions of an entire data by proportionate degree is in a circle is called a pie diagram. एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका. ये पाई डायग्राम है. ठीक है, इसमें population of countries of the European Union in 2007 by percentage दिया हुआ है. And here you can see from the colors, red color indicates Germany. तो 16.6, 12.8, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे डिग्रीज नहीं बताए हुए, यहाँ पे सीधा नंबर बताया हुआ टोटल का प्रोपोर्शन. तो अगर हमको इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करना होता है और हमको करना भी यही है, you will be asked a diagram or a graph whatever in the exam. तो you need to show, अगर पाई डायग्राम आ जाता है तो you need to show all the calculation. सबसे पहले हम उसको प्रोपोर्शनल
डिग्रीज तक कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम उसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। जैसे और उसको डिग्रीज तक कैसे लाना है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आपका कंपोनेंट वैल्यू कितना है उसको डिवाइड कर दीजिए आपकी टोटल वैल्यू से और उसका आंसर आ जाएगा। मतलब उसको इंटू 360 करेंगे डिग्री से, तो आपका आंसर जो होगा दैट विल ऑटोमेटिकली बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। फिर हमको पूरा 360 डिग्री को कंप्लीट करना है। वी नीड टू शो बोथ द थिंग्स। अगर पाई डायग्राम आता है तो डिग्री वाइज भी बताना है और उसका एक्चुअल कंपोनेंट वैल्यू जो है वो भी बतानी है, तो वी नीड टू शो देम बोथ। सो वी आर क्लियर विद द पाई डायग्राम। अच्छा, पाई डायग्राम को भी बनाने से पहले, पाई डायग्राम को बनाने से पहले भी वी शुड हैव सम थिंग्स इन आवर माइंड। These are to be considered while drawing a pie diagram. सबसे पहले तो जो बेसिक सी चीज है वो हम सबको पता है, पाई डायग्राम हमेशा सर्कल में बनता है। तो सर्कल कितना होता है, 360 डिग्रीज मेक अ सर्कल। और डिग्रीज फॉर सब डिविजन्स आर कैलकुलेटेड इन प्रोपोर्शन टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये प्रोपोर्शन किस लिए, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, कंपोनेंट वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360 डिग्री इज नोन एज द प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ दैट। Okay, then if the relevant data is to be compared across, अच्छा अगर उसमें कंपैरिजन करना हो किसी डेटा में तो क्या करना पड़ता है, फिर उस कंपैरिजन करने के लिए टू डिफरेंट पाई ग्राफ्स कैन बी मेड एंड दे कैन बी मेड साइड बाय साइड, ताकि उसमें से कंपैरिजन करना। Yes, so here we come to the end of our first lecture. In the next lecture we'll be discussing the types of graphs and precious time.